Hello students. Today we will be discussing about direct method. In our earlier class we have discussed grammar cum translation method, and in that method grammar and translation were two important components to teach English or any foreign language as a second language to the students. And here in this direct method, this is also called a natural method. Let us see how a teacher teaches through this method. What is a direct method? First of all, we will understand this. Direct method means that here what we have to keep in mind, see, here the second language or the target language is targeted or focused uh, using the direct method, right? That means here the teacher is not allowed to use uh, translation of the content by using mother tongue, or grammar is not taught deliberately. That means how the teacher teaches in this method. First, the teacher try to demonstrate the content to the student or try to teach English language to the student through demonstration, through actions, through conversations or discussions. That means what she does was what she does to teach it, like she is not supposed to use mother tongue. So if there is certain words or certain sentences, they are exposed directly to the student, and that is why it is called as direct method. So here mother tongue is not used, and the teacher conducts so many activities in the classroom, like she demonstrate do conversation exercises, discuss with the students, and deliver the content to the student naturally, right? So let us understand in a better way. Like if you see this slide, here the word direct means because the teacher tries to establish a contact, a direct bond between the conceptual meaning and in target language. That means if a teacher wants to teach the meaning of pen, so she is not supposed to translate it in the mother tongue. She will directly expose the pen to the student and show that this is a pen, and it is not column. Like grammar कम translation में what do? We translate in the mother tongue, जैसे कि हमने कहा कि पेन, तो ये पेन है, पेन कलम है, कलम को पेन कहा जाता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है कि सीधा हम पेन दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या शो करते हैं या उसकी पिक्चर दिखाते हैं और स्टूडेंट को ये कहते हैं लुक एट दिस एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ पेन। सो यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट डायरेक्टली उस वर्ड्स के कांटेक्ट में आता है। इसको आसानी से समझने के लिए आप इसको ऐसे लीजिए कि जैसे आप मदर टंग होती है, आपकी हिंदी होती है, आप हिंदी को कैसे सीखते हैं? हिंदी को क्या किसी और लैंग्वेज के हेल्प से सीखते हैं? नहीं, आप उसको नेचुरली सीखते हैं। आपके सामने हिंदी के वर्ड्स बार बार एक्सपोज किए जाते हैं थ्रू डिफरेंट people around you, like a kind of environment is created around you. आपके पेरेंट्स भी हिंदी में बात करते हैं, आपके घर वाले हिंदी में बात करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हिंदी में बात करते हैं और हिंदी में ही आपको चीज़ों को, कंसेप्ट्स को समझाया जाता है, इसीलिए आप जो है हिंदी को टारगेट कर पाते हैं। तो ये मेथड कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है, आपको जो भी लैंग्वेज टारगेट करनी है, उस लैंग्वेज को टारगेट करते हुए हमें क्या करना चाहिए कि उस टारगेट लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स हैं, जो भी मीनिंग है, जो भी सेंटेंसेस हैं, जो भी एक्सप्रेशन है, उन्हें स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एक्सपोज करना चाहिए। दैट मीन्स दे मस्ट बी कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स डायरेक्टली। So what is important is here is the pronunciation and spontaneous use of the language. That means यहाँ पर क्या होता है, no translation work is done and very little importance is given to the grammar. जबकि grammar का translation method में क्या होता है कि grammar को ज़्यादा importance दिया जाता है, grammar के rule के लिए बताने के लिए special grammar period होता है और grammar
पहले टीचर कंसेप्चुअल ग्रामर समझाता है और उसके बाद बच्चों से डिफरेंट सेंटेंसेस बनवाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रामर को जो है इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, यानी कि बच्चे के जो चैप्टर्स में अगर कुछ ग्रामर आ रहा है तो वो लास्ट में चैप्टर के एंड में बताया जाता है। हालांकि यहाँ पर्पस होता है कि स्टूडेंट की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल ही डेवलप हो, क्योंकि लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस है वो यही है, इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, इफ वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस our feelings and emotion with each other, so that means we are not knowing that language, understand? So यहाँ what is important कि हम communicate कर पाए, और communicate करने के लिए what is important, good pronunciation and spontaneous use of the language। यानी हम अच्छे से सुने, listening to our sound, listening to the sounds, हम सुने क्या हमारे कानों तक जा रहा है, उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करें और अकॉर्डिंगली हम स्पॉन्टेनियसली उसका जवाब दे पाए। स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली, ऐसा ना हो कि हमें माइंड में सोचना पड़े इसको। हिंदी में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो आप पहले क्या करेंगे, आपने क्योंकि हिंदी की हेल्प से इंग्लिश को पढ़ा हुआ है, तो पहले आप हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तब उसकी बात का जवाब इंग्लिश में देने की कोशिश करेंगे। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज नॉट सो एक्यूरेट और नेचुरल। जबकि हिंदी, क्या आप हिंदी में बात करने के लिए ऐसा सोचते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हिंदी आपने एक नेचुरली एक्सेप्ट की हुई है। तो हम सेकंड लैंग्वेज को भी इसी तरह से पढ़ा सकते हैं। यहाँ क्या है कि एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाया जाता है, यानी जो भी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, आइडियाज, थॉट्स, एक्सप्रेशन है, उनको डायरेक्टली स्टूडेंट्स को एक्सपोज किया जाता है। दूसरा है यहाँ इसका पर्पस है कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, यानी वो कम्युनिकेट कर पाए। और तीसरा है यहाँ पर कि जिस तरह से उसने अपनी मदर टंग को सीखा है, बिल्कुल उसी तरह से वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक्सपीरियंस करे, जो भी नई लैंग्वेज वो सीखना चाहता है, इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज है, राइट? इसके प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल्स में फर्स्ट आता है उसमें कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो हैं, दे आर कंडक्टेड इन द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि स्पेशली इन दिस मेथड वी हैव टू कीप इन माइंड दैट द टीचर इज नॉट एट ऑल अलाउड टू यूज मदर टंग, दैट मीन्स शी इज सपोज टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि अगर इंग्लिश सिखाना है बच्चे को तो टीचर भी इंग्लिश में ही बोलेगा और स्टूडेंट भी इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी का यूज अलाउड नहीं है, राइट? दूसरा है या ग्रामर जो है वो इंडक्टिव अप्रोच टू ग्रामर होता है, जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन में डिडक्टिव अप्रोच होता है। तीसरा है यहाँ जो वेकेबलरी है उसके लिए स्पेशली वेकेबलरी नहीं करी जाती है, लेकिन यहाँ पर वेकेबलरी डेली जो है जो भी चैप्टर्स में वेकेबलरी आ रही है वो चैप्टर्स की वेकेबलरी डेली डेवलप होती है। नेक्स्ट है कंक्रीट वेकेबलरी, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि बच्चा मेमोराइज कर रहा है, जैसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन में वर्ड मीनिंग को मेमोराइज करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी वेकेबलरी हम डेवलप करते हैं स्टूडेंट की, वो कैसे करते हैं, थ्रू पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स हम करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और यानी स्टूडेंट और टीचर मिल करके लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उन दोनों का ही इंट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि इम्पोज करी जाती है स्टूडेंट के ऊपर लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। इस मेथड से बच्चे को का ये फायदा है कि उसको हिंदी में नहीं सोचता, वो सीधा ही, क्योंकि उसने इंग्लिश सीख सुना है, बचपन से इंग्लिश सुना है, तो इंग्लिश ही बोलेगा डायरेक्ट, उसको बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सोचेगा नहीं, वो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस यह नहीं होता है। तो स्टूडेंट जो है दे थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। एंड द नेक्स्ट इज द स्पीकिंग इज टॉट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में लिसनिंग और स्पीकिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड रीडिंग एंड राइटिंग are secondary, they are the written representation of that. So here speaking is given importance। जो कि हम अगर मदर टंग की बात करें तो हम कैसे सीखते हैं कि हम सुनते हैं फिर हम बोलते हैं, और जो हम सुनते हैं बोलते हैं उसी को स्कूल में जाकर लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो ये मेथड भी यही कहता है कि स्टूडेंट्स को पहले सुनवाइए और बुलवाइए, बाद में वो लिखना पढ़ना सीखेगा। अगर हमें इस मेथड को अप्लाई करना है अपनी क्लास में, एज एन इंग्लिश टीचर अगर हमको अप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और आंसर एक्सरसाइजेस करवानी होगी। यानी अगर हम ऐसा कराते हैं तो दोनों स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्वेश्चन आंसर के थ्रू इंटरेक्शन होता है, तो इस लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन जो है वो दी जानी चाहिए, लेकिन एज पर द ग्रेड, राइट। जबकि ग्रेड मीन्स जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड के वोकेबलरी डेवलप हो। ये ना हो कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स को बच्चा लो स्टैंडर्ड में, लो ग्रेड में, लो क्लास में सीख ले। नेक्स्ट है रीडिंग अलाउड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करानी चाहिए क्लास में, क्योंकि बच्चा वॉइस मॉड्यूलेशन सीखता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन। यानी स्टूडेंट जो है उसकी जो भी गलती होती है, they can be rectified by the teacher. When he speaks, the teacher teaches the correct way of speaking, or uh, taking the meaning, right? Next is conversation practice is done. So अब ये हमें इसको अप्लाई करने के लिए conversation कराना चाहिए। Conversation means dialogue sharing, and different roles can be assigned to the student, and the students can be asked to interact with each other, and this is how a good interaction in the classroom takes place, and interaction between the teacher and the learner, interaction between the learner and learner, interaction between the learner and learners. So that can be done. And paragraph writing we can give to the student. That means random paragraph writing. We can ask the student to write on a particular topic randomly. So what are the advantages? As we have learned that language is not imposed to the student, and they can acquire fluency because they are learned through demonstration and conversation. So they will acquire the fluency, right? And they can converse easily. Second thing is that it become makes the teaching learning of English language interesting and lively. And the third is that the students are able to understand what they learn. That means it is not that only the teacher will make the student understand the meaning of the passage, as grammar cum translation method says. Like in that method, teacher explains the meaning of each and every word of a the chapter. But here the students are free to learn, free to read, and they can read it, they can understand the meaning, they can grasp the meaning, and whatever they read, they know what they are reading, and they get the meaning actually. And it is very useful if it is applied from lowest to higher class, right? That means gradually this method should be, the use of this method should be increased, right? At the initial stage हम कम यूज करें इसका, जैसे जैसे हम आगे बड़ी क्लासेस में जाते जाएं उतना यूज इसका बढ़ जाना चाहिए। And it enhances the fluency of speech, good pronunciation, and the power of expression is also developed. There are certain disadvantages, there are many abstract words which can be interpreted directly, which cannot be, sorry, interpreted directly. That means there are certain words which the student cannot, you know, the student cannot, the teacher is not able to actually explain, right? For example, honesty. Honesty cannot be taught by the teacher easily. So the abstract words, they are, the teacher finds difficulty in explaining through demonstration or through any picture or such kind of thing. So like idioms and phrases are also there. They are not able to taught, but the teacher finds difficult to teach these idioms and phrases, right? And this method is basically, it appeals to the auditory senses only. And next is auditory senses means listening and speaking is given importance. Then is it ignores systematic written work. Yes, student only listen and speak. The student take hardly any pen to read and write, right? And this method may not hold well in the higher classes where the translation is found suitable. Sometimes literal translation is required at the higher class. So this is there, and we have the dearth of the teacher. We have very few teachers who can make use of this method in the classroom, and in the larger class it is not possible because the teacher is not able to satisfy the needs of individual student in the classroom, the large class. दैट मीन्स अगर बहुत बड़े से बहुत सारे बच्चे हैं तो कुछ ही स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया जा सकता है कि वो लोग एक दूसरे से मतलब प्रॉपरली
कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्ट्रक्चर।